امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. ان صدارتی انتخابات کا بہت چرچا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جو کہ ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہیں رہائی مل جائے گی اور وہ شاید اقتدار میں بھی آ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان تعلقات اچھے تھے. کمالا ہیرس ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں. ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی امریکی صدر ہیں. پینٹاگون یعنی امریکہ کی وزارت دفاع اور اس کے ساتھ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں CIA ہے. جنوب مشرقی ایشیا کا جو علاقہ ہے جرمنی میں امریکی فوج موجود ہے. 130 مساجد کے امامز نے ایک ریاست میں یہ کہا ہے دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہ دیں بلکہ ایک گرین پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے جل سٹین اس کو ووٹ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ تبصرے اور میں ہوں شیراز پراچا. آج ہفتہ 2 نومبر ہے اور 5 نومبر منگل کے روز امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. ان صدارتی انتخابات کا بہت چرچا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور پاکستان میں بعض لوگ اس کو بہت سادہ بات بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جو کہ ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اگر وہ انتخابات جیت جائیں گے تو پاکستان کی سیاست پر اس کے اثرات ہوں گے اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اس وقت جیل میں ہیں انہیں رہائی مل جائے گی اور وہ شاید اقتدار میں بھی آ جائیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان تعلقات اچھے تھے. یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں بنا کر پیش کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نومبر کے جو انتخابات ہوں گے اس میں نتیجے کا اعلان تو ہو جائے گا 6 نومبر کی صبح تک کہ کون جو ہے الیکشن جیتا. کمالا ہیرس جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ سابق صدر ہیں اور دوبارہ انتخاب لڑ رہے ہیں. لیکن جو نیا صدر ہوگا یا ہوگی وہ جنوری میں جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. یہ جو نومبر سے جنوری تک کا ٹائم ہے اس میں وہ تیاری کریں گے. تو اگر پھر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا بھی ہے تو اس کا اعلان یا اس کے بارے میں علم ہمیں جنوری میں جا کر کہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی یہ بظاہر امریکہ کی داخلی سیاست جو ہے اس میں تو ان کے درمیان کچھ فرق ہے لیکن جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اس میں کم و بیش دونوں پارٹیوں کی پالیسی ایک طرح رہتی ہے. اس سے پہلے کہ میں امریکی صدارتی انتخابات پر بات کروں تھوڑا سا امریکہ کی جو سیاست ہے جو ریاست ہے اس کو میں اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا اور وہ بھی بہت کمپلیکس بہت بڑا ٹاپک ہے. اس میں چند اس کو سادہ ترین الفاظ میں مختصر ترین الفاظ میں جو امریکہ کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بھی چند ایک پہلو ہی میں سامنے لاؤں گا. مثال کے طور پر امریکہ میں جو طاقت کا جو پاور اسٹرکچر ہے اس کی 3 تہیں ہیں 3 لہریں ہیں. پہلی جو ہمیں امریکہ میں پاور اسٹرکچر نظر آتا ہے اس میں ہمیں امریکی صدر ہیں امریکی کانگریس ہے امریکی سینٹ ہے اور پھر ریاستی اسمبلیاں ہیں ریاستی کانگریس ہے جیسے کہ ہمارے یہاں صوبائی اسمبلی ہوتی ہے. اسی طرح 50 ریاستوں میں 50 اسٹیٹ اسمبلیز ہیں وہاں پر گورنرز ہیں اور مرکزی حکومت جو ہے اس میں کانگریس سینٹ اور صدر ہے. یہ وہ امریکی طاقت کا ڈھانچہ ہے جو کہ دنیا کو نظر آتا ہے امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ کے باہر بھی. اس کے بعد امریکہ کی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے جیسے کہ ہر سٹیٹ میں ہوتی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اس اسٹیبلشمنٹ میں پینٹاگون یعنی امریکہ کی وزارت دفاع اور اس کے ساتھ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں CIA ہے اور دوسری ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے اور کئی دوسری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اور رہتی ہے اور وہ امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں سیکیورٹی پالیسی جو فورن پالیسی ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ جو امریکہ کی حکومت ہے یہ نہ نظر آنے والی حکومت ہے. یہ زیادہ سامنے نہیں آتی. سامنے جو آتے ہیں وہ امریکی صدر ہوتے ہیں کانگریس یا سینٹ ہوتی ہے لیکن ان کی پشت پر جو دوسری طے ہے اور زیادہ طاقتور طے ہے وہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں امریکہ کی وزارت یا جو دفاع کا محکمہ ہے اور جو اس کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں.
इसके बाद तीसरी तय है अमेरिकी रियासत की, और उसमें बड़ी बड़ी कारपोरेशंस, बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, उसके मालिकान, उसके सीईओज, उसके प्रेसिडेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। अब अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, जहां से आप देखते हैं कि ये बड़ी बड़ी जो टेक कंपनी है, गूगल वगैरह कारपोरेशंस हैं, जिनके कारोबार जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, वो जो फौजी जंगी कारोबार करते हैं, पूरी दुनिया में जंगें होती हैं, और उस जंगों में कहीं पर अमेरिका मुलविस होता है, कहीं पर वो मुख्तलिफ ग्रुपों को सप्लाई कर रहा होता है, असला सप्लाई कर रहा होता है, उनको सपोर्ट कर रहा होता है। अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 800 से ज्यादा फौजी अड्डे हैं दुनिया के 80 ममालिक में। लिहाजा आज के दौर में दुनिया पर अगर किसी रियासत की हुकूमत है तो वो अमेरिका है, जिसका पूरी दुनिया में फौजी अड्डे हैं, और अमेरिका दुनिया के हर खित्ते में कहता है कि हमारे मफादात हैं, और उस मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो वहां पर फौजें भेजता है, फौजी अड्डे कायम करता है। मिसाल के तौर पर जनूब मशरकी एशिया का जो इलाका है, जो बहरुल काहिल का इलाका है, चीन की जो मशरकी सरहद के पास, चीन की बंदरगाहों के पास, वहां पर आप देख लें कि दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। अमेरिकी फौजियों की सबसे बड़ी तादाद जो है वो आज भी जापान में है, 50,000 के करीब, यानी यूरोप से बाहर जापान में अमेरिकी फौजी अड्डों पर 50,000 अमेरिकी फौजी इस वक्त तैनात हैं। 25,000 अमेरिकी फौजी जो हैं वो जनूबी कोरिया में तैनात हैं। इसी तरह फिलिपीन में अमेरिकी फौजी हैं। इसी तरह गुआम का एक जजीरा है, वहां पर अमेरिका के 10,000 फौजी जो हैं वो तैनात हैं। इसी तरह सिंगापुर में अमेरिका के फौजी हैं। इसी तरह मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सारे जजायर में अमेरिका ने घेराव किया हुआ है चीन का, और चीन को कंटेन करने की उसकी पॉलिसी है। आप यूरोप में आ जाएं, जर्मनी में अमेरिकी फौज मौजूद है, और मगरबी जर्मनी में अमेरिकी फौजों की तादाद 50,000 के करीब बताई जाती है। इसी तरह जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं वहां पर भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। बाल्टिक स्टेट्स में भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। फिनलैंड और स्वीडन जो अब उसके नए मेंबर्स बने हैं, वहां पर भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। इसी तरह अफ्रीका में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। तो अमेरिका इन फौजी अड्डों से, और लैटिन अमेरिका जो है, जनूबी अमेरिका जो है, वहां पर तो बहुत सारी हुकूमतों को जो है अमेरिका कंट्रोल करता है। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रो अमेरिकन हुकूमत जो है वो अर्जेंटाइन में मौजूद है। तो अमेरिका की जो ताकत है वो एक आलमी ताकत है, और वो आलमी सतह पर एक फौजी ताकत है। यही वजह है कि अमेरिका का वजारत दिफा जो है वो बहुत अहम है, पेंटागन। और फिर इस पेंटागन से भी ऊपर जो है अमेरिका की मल्टी नेशनल कारपोरेशंस हैं, इंटरनेशनल कारपोरेशंस हैं, जिनके पूरी दुनिया में मफादात हैं। वो असला भी बनाते हैं, वो वेपन्स भी बनाते हैं, वो हाई टेक इंडस्ट्रीज में हैं, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं, वो जहाजों की, मिलिट्री प्लेन्स, स्पेस इंडस्ट्री, इसमें वो सब इन्वॉल्व हैं। तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजनेसेस हैं। लिहाजा अमेरिकी सियासत में, अमेरिकी रियासत में इन बिजनेस कारपोरेशंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए अमेरिकी सियासत एक ऐसी सियासत है, अमेरिकी जमहूरियत एक ऐसी जमहूरियत है जिसमें पैसा सबसे ज्यादा आम है। पैसे के बगैर अमेरिकी सियासत का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो बड़ी बड़ी मिलिट्री कारपोरेशंस हैं, ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं, ये दोनों पार्टियों को फंडिंग करते हैं, दोनों पार्टियों को पैसे देते हैं। और अगर एक पार्टी आ जाए, दूसरी पार्टी आ जाए, ये इन बड़ी बड़ी कारपोरेशंस, ये जो बिजनेसेस हैं, इनके मफादात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आप देखें फंड रेजिंग होती है और वो पैसे देते हैं। इसी तरह अमेरिकी सियासत में, अगरचे अमेरिका में जूइश की तादाद, यहूदियों की तादाद तकरीबन 70 लाख के करीब है, लेकिन अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेस, मीडिया हाउसेस जो हैं, और बिजनेसेस और मीडिया हाउसेस आपस में मिले हुए हैं, ये कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जहां पर एक कंपनी जो है वो टैंक भी बनाती है, जहाज भी बनाती है, गोला बारूद भी बनाती है, और उसके साथ साथ उसके मीडिया हाउसेस भी होते हैं। तो ये जो है, इनमें बड़ी तादाद में जो मीडिया हाउसेस हैं, और खुसूसन जो आजकल का जो मौजूदा टेक्नोलॉजीज हैं, इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज हैं, आईटी की टेक्नोलॉजीज हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो मालिकान हैं, इनमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वॉल स्ट्रीट है अमेरिका में, इस
اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ جوئش کے پاس ہے، اور یہ جوئش جو ہیں یہ فنڈنگ کرتے ہیں، یہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں اسرائیلی لابی کا حصہ ہیں، اور وہ امریکہ کی، اگرچہ امریکہ کی ٹوٹل آبادی 34 کروڑ کے قریب ہے، 34 کروڑ میں 70 لاکھ جوئش کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کرٹیکل جو پوزیشنز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، جو پاور کی جگہ ہیں، وہاں پر یہ لوگ ہیں، اور یہ فنڈنگ کرتے ہیں اور امریکہ کو مجبور کرتے ہیں، امریکی حکومتوں کو، کہ وہ اسرائیل کی ہر عمل کو، اسرائیل کے ہر قدم کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو۔ اور امریکہ نے ہمیشہ یو این کی سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا ہے، اگر اسرائیل کے حق میں جو اگر کوئی قرارداد آئی ہے تو وہ پیش کی، اگر اس پر ذرا سی بھی تنقید ہوئی ہے تو اس کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے۔ تو امریکہ کے اس اسٹیٹ سٹرکچر میں یہ جو انتخابات ہوتے ہیں ہر 4 سال کے بعد، اور جو 2 سال کے بعد اسٹیٹ میں الیکشنز ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا دکھاوے کا پروسیس ہے، ورنہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں کی پالیسیاں، جب خارجہ پالیسی پر بات آتی ہے، امریکہ کے فورن انٹرسٹ پر بات آتی ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ پر، گلوبل انٹرسٹ پر، تو ان دونوں کی پالیسیاں ایک جیسی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان پر تنقید ہوتی ہے، اس لیے کہ جو امریکہ کی جو روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں، ان میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت دیکھیں آپ، جو مخالفت ہو رہی ہے بہت زیادہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت جو ہے امریکہ کا میڈیا کر رہا ہے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اس کی مخالفت کر رہے ہیں، امریکہ کا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں، جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں، جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں، جیسے کہ میں نے کہا وہ سلیکان ویلی میں ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی یہ جو پالیسی کو جو کنٹرول کرتے ہیں بڑے بڑی کمپنیاں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ان کو شکوک ہیں، اور پورا یورپ، مغربی یورپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے، مشرقی یورپ کے لوگ بھی، حکومتیں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اس نے یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت ہو گیا، نیٹو میں ہم بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، نیٹو بیٹھ کے پورے یورپ کی حفاظت کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے یورپ کا، اور ہمیں یہ پیسے اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر خرچ کرنے چاہیے۔ یورپینز کو اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، انہیں اپنا تحفظ خود کرنا چاہیے۔ یورپی حکومتیں یہ پسند نہیں کرتی۔ پچھلے جب سے نیٹو وجود میں آیا ہے، جو مغربی یورپ کے ممالک ہیں انہوں نے اپنے ڈیفنس پر زیادہ پیسے وہ خرچ نہیں کرتے۔ پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد مارشل پلان کے ذریعے، ڈیولپمنٹل جو پلان تھا اس کے ذریعے امریکہ نے یورپ کی تعمیر نو کی، جرمنی کی تعمیر نو کی، وہاں پر امریکی فوجی اڈے بھی تھے، فوجیں بھی تھیں، اور مغربی جرمنی کو اس نے ایک بہت ماڈرن اسٹیٹ بنانے میں اس کی ہیلپ کی۔ فرانس کی امریکہ نے مدد کی، برطانیہ کی امریکہ نے مدد کی، اور مارشل پلان کے ذریعے 1945 کے بعد یورپ جو تیزی سے ماڈرنائز ہوا، یورپ جو تیزی سے ڈیولپ ہوا، اس میں امریکی پیسے تھے، اس میں امریکی رقم تھی، اس میں امریکی کمپنیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹو کی شکل میں امریکہ نے جو ہے یورپ کے ممالک کا دفاعی نظام بھی انہوں نے اپنے سنبھال لیا، اور یورپی ممالک دفاع میں بہت کم کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب پچھلی بار حکومت میں آئے 2016 میں، تو انہوں نے کہا کہ یورپی اب جو ہے اپنا کنٹریبیوشن زیادہ کریں، اور یورپی ممالک جو ہیں، نیٹو ممبرز جو ہیں، وہ اپنے دفاعی بجٹ کو 2% سے بڑھائیں، 2.5% تک لے جائیں، تاکہ امریکہ کا جو برڈن ہے یورپ کے دفاع میں وہ کم ہو۔ تو اس پر یورپ سخت ناراض تھا، یورپی ممالک جو تھے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو شیلٹر انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا تھا امریکہ نے یورپ کو، وہ واپس لے رہے تھے۔ تو مغربی یورپ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت ہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرائن کی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ جو بائیڈن نے شروع کی، جو بائیڈن نے پرووک کیا۔ اس سے پہلے جو یوکرائن کی لڑائی ہے اس کی بنیاد بل کلنٹن نے رکھی، کیونکہ بل کلنٹن نے یہ کہا کہ ہم نیٹو کو ایسٹ ورڈ، مشرق کی طرف ہم اس کو پھیلائیں گے، وہ آگے جائے گا، اور جو مشرقی سابق کمیونسٹ سوشلسٹ اسٹیٹس تھیں ان کو اس نے ممبر بنایا، اور جو ہے نیٹو میں شامل کیا، اور اس کو روس کی سرحدوں کی طرف بڑھانا شروع کیا، جس کا رد عمل روس نے ظاہر کیا، اور پھر 2008 میں نیٹو کا ممبر بنانے کا اعلان کیا نیٹو نے اپنے اجلاس میں یوکرائن کو، جس کی وجہ سے روس بہت سخت ناراض ہوا، اور پھر 2008 سے 2014 کے درمیان جو ہے روس اور مغرب کے درمیان تعلقات بہت خراب ہوئے، اور پھر ایک کودتا کیا گیا، ایک انقلاب امریکہ کی سپورٹ سے لایا گیا، اور وہاں پر جو روس کے حمایتی صدر تھے ان کو ہٹا کر ایک امریکہ کی پپٹ حکومت یوکرائن میں لائی گئی، جس کے بعد پھر جو روس اور
मगरिब के दरमियान ताल्लुकात खराब होते चले गए। इस दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने 2016 में, तो उन्होंने रूस के हवाले से उनकी पॉलिसी जो थी वो काफी हद तक मुख्तलिफ थी, दोस्ताना थी। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये इल्जाम आयद किया कि 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की थी उसकी पुष्ट पर रूस था। रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत मदद की और उसके में फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और वो तहकीकात भी हो रही हैं। फिर जब जो बाइडन आया तो जो बाइडन ने रूस के साथ ताल्लुकात को बहुत खराब कर दिया और यूक्रेन की लड़ाई में वो एक बहुत पार्टी बन गए और यूक्रेन की तनाजा अभी तक चल रहा है। अब मगरबी यूरोप के लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो रूस आकर आप पर कब्जा कर लेगा, एक दूसरा हिटलर पैदा हो चुका है रूसी सदर की शक्ल में, और उनमें एक खौफ व हरास की फिजा है। और अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसके नतीजे में यूरोपीय ममालिक को सख्त नुकसान हुआ है, क्योंकि वो रूस से सस्ती गैस खरीदते थे और रूस की वजह से उनकी इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन जब रूस के पर पाबंदियां लगी तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी की प्राइसेस ज्यादा होने से जर्मनी जो कि एक इंडस्ट्रियल सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, उसमें क्राइसिस आ गया, रिसेशन आने वाला है। बर्तानिया की इकोनॉमी मुतासिर हुई, फ्रांस की इकोनॉमी मुतासिर हुई। तो इस वक्त यूरोपी जो है वो माशी तौर पर भी बहुत क्राइसिस में है और उनमें ये फियर भी है कि जी हमारा रूस के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं, तो यूरोप में जंग जारी है। अब यूरोपियों को ये फिक्र है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बन गया तो हमसे वो दिफा में जो हमें असिस्टेंट मिलती रही है जो बाइडेन के दौर में, वो कम हो जाएगी और इस वजह से जो है रूस और अमेरिका जो है वो उनका आपस में ताल्लुक अच्छा हो जाएगा और हम बीच में मारे जाएंगे। और इसी तरह जो वार इंडस्ट्री है अमेरिका की, जो मैंने शुरू में कहा कि जो तीसरी बड़ी कंपनियां हैं, उनका भी मुनाफा जो है वो जंगों में है। लिहाजा वो भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर उसने यूक्रेन में जंग खत्म कर दी और उसने पॉलिसी तब्दील कर दी तो उससे इन लोगों के मफादात को ठेस पहुंचेगी। और ये मीडिया हाउसेस जो हैं ये भी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत कर रहे हैं। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 2017 में चीन से तिजारती जंग शुरू की थी और चीन को रोकने की उसने बात की थी। तो चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है वो एग्रेसिव रहेगी। और जहां तक मशरिक वस्ता का ताल्लुक है, मशरिक वस्ता के बारे में दोनों पार्टियों की पॉलिसी तकरीबन एक तरह है। डोनाल्ड ट्रंप की भी वही पॉलिसी होगी और कमला हैरिस की भी वही होगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि इस्राएली लॉबी जो है वो मशरिक वस्ता में बहुत मजबूत है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा कर रहा है और वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा वापस आए और वो जो अमेरिका पूरी दुनिया में उसने अपनी एम्पायर बना चुका है उसमें वो कुछ हिस्से से वो जंगें जो है वो खत्म करे। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत की एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वजह है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत जो है वो लिबरल अमेरिकन कर रहे हैं, वो जूस में भी कुछ लोग उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर है वो ज्यादातर कम तालीम याफ्ता है, दही इलाकों में रहता है, वाइट अमेरिकन हैं और वो जो हैं वो जो न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में या शिकागो में जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे देखते हैं कि ये क्या जाहिल है, ये क्या क्रूड आदमी है, रूड आदमी है और ये लोगों को डिवाइड करता है, ये रेसिस्ट है। और ये वो तो अमेरिका की दाखिली पॉलिसी हो गई। अमेरिका की 34 करोड़ आबादी में से टोटल मुसलमानों की आबादी जो है वो 40 लाख के लगभग है, 35 से 40 लाख के लगभग मुसलमान अमेरिका में रहते हैं और उनमें से जो मुसलमान वोट देने के अहल हैं उनकी तादाद तकरीबन 25 लाख के करीब है और जो यहूदी हैं उनकी तादाद 70 लाख है और उनके भी वोट देने वालों की तादाद जो है तकरीबन मुसलमानों से थोड़ी सी ही ज्यादा होगी। लेकिन मुसलमानों का वोट इसलिए अहम हो चुका है अमेरिका में क्योंकि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद उन रियासतों में रहती है। इस वक्त 7 रियासतें ऐसी हैं जहां पर के वोटर्स जो हैं वो फैसला बदलते हैं, कभी एक पार्टी को वोट देते हैं आखिरी हफ्तों में, आखिरी दिनों में मुतासिर होकर कभी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। 50 रियासतों में से जो बाकी 43 रियासतें हैं उनके बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में कहा जा सकता है कि किसी एक रियासत में डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा हिमायत है, किसी दूसरी रियासत में रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा हिमायत हासिल है और ये दोनों पार्टियां जानती हैं कि किस रियासत में हमें
हमें अक्सरियत हासिल है, और वो वोट डेमोक्रेटिक को देती हैं या रिपब्लिकन को देती हैं। लेकिन मसला वहां पैदा होता है जहां पर कि एक रियासत एक इलेक्शन में एक पार्टी को वोट देती है और फिर वोटर्स अगले इलेक्शन में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो किसी बात से मुतासिर हो जाते हैं या किसी बात से खफा हो जाते हैं, तो वो अपने वोट को तब्दील करते हैं। इसको स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इन स्विंग स्टेट्स में मिडिल ईस्टर्न मुसलमानों की आबादी है और वो नाखुश हैं जो बाइडेन की जो पॉलिसीज थी मशरिक वस्ता में इसराइल के हवाले से, लिहाजा मुसलमानों को गुस्सा है, रंज है, वो कमेला हैरिस को वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो बाइडेन की कंटिन्यूएशन है। इसी तरह दूसरी रियासतों में भी जो मुसलमान रहते हैं वो इसराइल के हवाले से जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पॉलिसीज थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज थी, उससे वो नाराज हैं। तो लेकिन वो ट्रंप से भी नाराज हैं क्योंकि ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो उसने मुसलमानों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था और उसने कहा कि अमेरिका में मुसलमान नहीं आएंगे। तो मुसलमानों ने ये पॉलिसी अपनाई है। ये उनको वो कहा जा रहा है, 130 मसाजिद के इमाम्स ने एक रियासत में ये कहा है कि आप जो हैं उसको वोट ना दें, दोनों पार्टियों को वोट ना दें, बल्कि एक ग्रीन पार्टी की जो कैंडिडेट है जिल स्टेन उसको वोट दें, या एक सोशलिस्ट जो उम्मीदवार है उसको वोट दें। तो ये जो थर्ड पार्टी को वोट है उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। जो तीसरी पार्टी है वो उनके कैंडिडेट्स अमेरिका में कामयाब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुसलमानों के ये जो 25 लाख वोट हैं, अगर ये दोनों पार्टियों को नहीं पढ़ते और थर्ड पार्टी को पढ़ते हैं, अगर ये स्विंग वोट जो है जॉर्जिया की रियासत है, अगर उसमें ये स्विंग वोट जो है अगर वो कमेला हैरिस को नहीं पढ़े और थर्ड पार्टी को भी पढ़ गए तो उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को होगा और डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। अब तक की इतलात है, आज 2 नवंबर तक दोनों कैंडिडेट्स जो हैं उनके दरमियान रेस तकरीबन बराबर है। 538 लोग जाके फैसला करेंगे कि कमेला हैरिस और इनमें से जो अक्सरियत होगी, जो 270 से ज्यादा वोट लेगा वो उम्मीदवार जो है वो जीत सकता है। तो अब आखिर में मैं कहता चलूं पाकिस्तानियों के हवाले से, पाकिस्तानियों की आबादी अमेरिका में तकरीबन 7 लाख बताई जाती है। उसमें एलिजिबल वोटर्स की तादाद शायद कम होगी। ये तो आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं होंगे। रजिस्टर्ड वोटर अमेरिका में सिर्फ वही है जो कि अमेरिकी शहरी है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स, स्टूडेंट वीजा पर गए हुए लोग, बिजनेस वीजा पर गए हुए लोग, टूरिस्ट विजिटर्स, ये लोग वहां पे वोट नहीं दे सकते। एसाइलम सीकर्स भी वहां पे वोट नहीं दे सकते। सिर्फ अमेरिकी शहरी, वो शहरी जो कि अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो वोट दे सकते हैं। वो पाकिस्तानी जो हैं वो उनमें से बड़ी तादाद शायद डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे क्योंकि वो इमरान खान की हिमायत करते हैं और उनका ये फैलाया हुआ तासुर है पाकिस्तान में कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान को छुड़ाएगा। लेकिन जो मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों के जो 25 लाख मुसलमानों के वोट हैं, यानी पाकिस्तानियों के 3-4 लाख वोट, अगर आप ये 2 लाख वोट आप निकाल भी दें, बाकी जो वोट बचते हैं मुसलमानों के, वो उनकी अक्सरियत जो है वो वोट नहीं देगी डोनाल्ड ट्रंप को और कमेला हैरिस को, बल्कि वो थर्ड पार्टी कैंडिडेट को, तीसरे उम्मीदवार को जो कि ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार है, ये सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार है, उनको एहतिजाजन वोट देगी क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो बाइडेन ने इसराइल का बहुत मजालिम का, इसराइल ने जो कुछ फलस्तीन में किया, इसराइल जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, उसकी वजह जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन से, डेमोक्रेटिक पार्टी से मुसलमान नाराज हैं तो वो अपना वोट थर्ड पार्टी को देंगे, या फिर उनमें से पाकिस्तानियों की तरह कुछ लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे, जो कि मुसलमानों का दोस्त नहीं है, पाकिस्तानियों का दोस्त नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं पाकिस्तानी वोटर्स कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद इमरान खान आजाद हो जाए, तो लिहाजा वो उसको वोट देंगे। तो कमेला हैरिस वो मुसलमानों के वोटों से ज्यादा पुरुमीद नहीं है क्योंकि उसको पता चल गया है, उनको अंदाजा हो रहा है, अगरचे वो कोशिश कर रहे हैं कि आप भी मुसलमानों को वो करें, उनका वोट हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन मुसलमानों का वोट थर्ड पार्टी को जाएगा। इसके बावजूद भी ये इलेक्शन अनडिसाइडेड है और अभी तक, और स्विंग स्टेट जिसमें जहां पे लोग आखिरी वक्त में फैसला करते हैं, वो इस इलेक्शन का फैसला करेंगी एक नैरो मार्जिन के साथ, और उसमें मुसलमानों की वोट की ये अहमियत है कि अगर स्विंग स्टेट्स में मुसलमानों ने थर्ड पार्टी को भी वोट दिया या डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया तो उसका नुकसान कमेला हैरिस को होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।